السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسری۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو عام آدمی ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم جب بھی اس سے پہلے جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو گفتگو سنائی دیتی ہے عوام کی، اس میں مہنگائی کے حوالے سے شکوے زیادہ ہوتے ہیں عوام کے۔ تو آج ہم ذرا لوگوں سے بات کریں گے کہ انہیں کہاں پر بہتری دکھائی دے رہی ہے، کیسے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیا ایسے اقدامات لیے جانے چاہیے جس سے جو اس قوم کے اور اس عوام کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے۔ تو آج ہم اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، اس طرح ہم بات کریں موجودہ حالات کے حوالے سے، سر ہم لوگوں کے پاس چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہیں کیا خیالات ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ گرمی چل رہی ہے آج کل، گرمی حبس والا موسم، لیکن آج ہوا چل رہی ہے۔ ہاں بالکل، یہ ہے شکر ہے کہ موسم میں اللہ کا کچھ بدلاؤ آیا ہے۔ جی ہاں، سنائیں حکومت کیسی جا رہی ہے؟ حکومت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھی جا رہی ہے، مہنگے ہیں، بل کا مسئلہ غریب چل رہا بندہ مر رہا ہے، کیا کریں ہم؟ ہے۔ کیا ایسا حکومت کرے کہ عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری آ جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اچھا ہی کرنا چاہیے، ہمیں تو یہی چاہیے بس۔ کیا اچھا؟ کوئی ایک آدھا مشورہ دے دیں ان کو، کیا مشورہ دیا؟ کوئی تو دے دیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ملک اچھا ہو جائے بس، ملک اچھا خواہش ہے، بس۔ دلی خواہش ہے، دلی خواہش، ملک اچھا ہوگا تو اچھے سارے طریقے لوگ سے حالات، چلائے، اچھے طریقے سے سارا بتراؤ ہوگا۔ کوئی سادہ سی بات ہے کہ اچھا ہو جائے اور ملک کو ہاں، اچھی طریقے سے چلایا جائے بالکل، بالکل۔ تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ پریشان، یہ دیکھ لو کیا حال ہوا ہے، بل بھرتے نہیں ہیں، ہاں، کیا کریں پھر؟ پکھے بیچ بیچ کے بل بھر رہے ہیں، یہ مسئلہ گرمی میں یہ حال ہے، بجلی کے بل کا مہنگی، مسئلہ ہاں ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، سب چیز کم سے کم کریں پھر۔ کم سے کم یہ کہیں سادہ سی خواہش کو انہوں نے اظہار کیا کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ملک بہتر ہو جائے، ملک کے حکمران بہتر انداز میں کام کرنے لگ جائیں۔ انہوں نے ایک سادہ سی بات کی۔ ہم ذرا یہاں پہ آئیں گے۔ بھجن کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کیسا جا رہا ہے کام؟ الحمدللہ اللہ کا کب شکر سے ہے۔ آپ کی یہاں پہ شاپ ہے؟ ہماری دکان تقریباً 50 سال پہلے کی 50 ہے۔ سال ماشاء ہاں اللہ۔ جی۔ تو کیا کیا پہلے چیزیں آپ دادا کے پاس ہوتے ہیں، ہوتی پھر ہیں؟ چاچو ہوتے ہیں، پھر ہم آئے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتے ہیں دہی بھلے، چنے ہیں، ڈولی روٹی ہے، نان ہے، یہ دال مونگ مشہور ہے۔ آپ کی، ہاں جی الحمدللہ، پاک گیٹ کے مشہور دہی جو بھلے۔ بھی پاکٹ آتے ہیں تو یہ چیزیں ٹیسٹ ہاں کر جی کے جاتے ہیں۔ بالکل ضرور بھائی، بدلے سے آتے ہیں ہمارے پاس، گجرات سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، بڑی دور دور سے ہمارے پاس آتے ہیں بھائی جان۔ تو یہ ذائقہ کیسے آپ نے کریٹ کیا وہ کہ عوام نے بتانا نا بھائی جان، ہم تو کہیں گے اچھے ہیں، وہ آپ نے بتانا کہ نا۔ آپ لوگ اچھے انداز سے بناتے ہیں ہاں تو جی اچھا لگا ہوگا۔ الحمدللہ جی، اچھا انداز سے بناتے ہیں بھائی جان، چلیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، چلیں، شکر اب اللہ یہ بتائیے گا کہ حکومت کیسی جا رہی ہے؟ حکومت صحیح نہیں جا رہی بھائی جان۔ کیا کیا حکومت بھائی نے؟ یہاں بہت مہنگائی، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، عوام بہت پریشان ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے بہت زیادہ، جس کی کوئی انتہا ہی تو نہیں ہے۔ کیا حکومت کرے تو پریشانی کم ہو جائے، حکومت کچھ ایسا کرے کہ عوام کے لیے اچھا ہوا، سہولت ملے، ہر چیز کی سہولت ملے۔ سہولت ملے؟ ہاں جی۔ حکومت کچھ ایسا کرے کہ سہولت مل جائے۔ کیا حال ہیں جی آپ کے؟ حال ٹھیک ہے جناب، کیسے جا رہے ہیں کام کاج؟ کام تو آج کل بہت نرم ہے جی۔ یہ حکومتی جو سلسلے چل رہے ہیں نا، ہاں اس کی وجہ سے تو کاروبار تو ختم ہو گیا۔ جی، حکومت کے جو جھگڑے چلتے ہیں آپ ہاں سیاستدانوں جی، کے، اس کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا۔ کیا حکومت تو ہمارے سیاستدان کریں جس سے عام آدمی خوش ہو جائے، اس کی حالات بہتر ہو جائیں؟ کیا ان کو کرنا چاہیے جو زندگی کے روزمرہ کے جو سامان ہیں نا، ان کو سستا کیا جائے تاکہ ہر آدمی اس کو آسانی سے لے سکے، ٹھیک ہے۔ اور تمام جو جتنے بھی یہ جو کیے ہوئے ہیں ریٹ تیز، ان کو کم کیے جائے۔ پھر بہتری آ جائے گی۔ ہاں بالکل مسئلہ صرف بہتر۔ مہنگائی کا ہے، ہاں جی، باقی کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ نہیں گلا شکوہ نہیں، پر مہنگائی کم کر دیں، مہنگائی کم کرے۔ عوام خوش ہے۔ ہاں تاکہ ہر بندہ، اب دیکھو نا، اب آم سے لگا لیں، ہاں، یہ 150 روپے کلو سے کم آم نہیں ہے۔ غریب آدمی کہاں سے کھائے گا؟ وہ اپنی ہانڈی پکائے گا کہ آم کھائے گا؟ ہاں یہ تو ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صرف شکوہ ہے مہنگائی کا۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر سنائیں ہے، کام کاج کا۔ اللہ کا شکر ہے۔ کام کاج کا نہ پوچھیں، یہ حال ہوا پڑا کہ بھوک سے پاگل ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ کب سے یہ مسئلہ بنا؟ یہ جب سے بنا، جب سے ہر چیز کی پرائز اپ ہوئی ہے۔ کہ 2-3 سال سے ہاں جی ہاں جی، بالکل ایسی پریشانی بات بڑھتی جا رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ حکومت اس کا جو بیج ہے وہ عمران خان بو کر گیا تھا، ٹھیک ہے، مگر اور 5 جو سال بیٹھ اس جائیں۔ بیج کو جو پانی دیا وہ اس نئی حکومت نے پانی دیا، میاں شہباز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اب نے پانی چلیں، اس نے بیج بو دیا، اس نے پانی لگا دیا، اب درخت بنتا جا رہا ہاں ہے، جی۔ اب اس درخت کو کاٹنا بھی ہے، بالکل بالکل مہنگائی والے درخت کو۔ بالکل۔ تو کیا کرے اس حکومت؟ کا سب سے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ ہر بندہ خوشحال رہے لیکن سکے۔ حکومت یہ کہتی ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے پیسے چاہیے،
वो हैं खजाने में नहीं है तो वो खजान ये जितने हमारे ब्यूरोक्रेट हमारे सियासतदान हैं इन सब के पास पैसा है, ठीक है। अगर ये तमाम लोग अपना पैसा मार्केट में लेकर आए तो मुझे ये लगता है कि हर बंदा खुशहाल होगा, कोई बंदा भूखा नहीं से मरेगा। लेके आते तो ये हालात तो ना होते। जी जी, वो जान के लेकर आते हैं ना। अब देखो, अब बिजली है 200 यूनिट का बिल 6000 रुपये है, 201 यूनिट का बिल 9000 कुछ रुपये है। ये हमारे ऊपर अजाब नहीं तो और क्या है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे शराफी के पास पैसा है वो अगर इश्यूज को हल करने में लगाएगा तो अब ये देखो, आप या हम लोग हम हर चीज़ का बिल पे कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। जितने बड़े सियासतदान लोग हैं उन्हें पता नहीं कि 1000 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। ये मुफ्ता ख़त्म होने चाहिए। हाँ जी, मुफ्त वाला काम ख़त्म होना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हर बंदे के लिए होना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत प्यारी बात उन्होंने की है कि मसाइल हल हो सकते हैं। हल करने का इब्तिदा ये है कि जो मुफ्त खोर हैं हमारे, चाहे वो शराफिया के लोग हैं चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो सारे मुफ्ता छोड़ दें और बिल अदा करने लग जाएं। जो जो चीज़ें वो लेते हैं मुफ्त में उन चीज़ों की कीमत अदा करने लग जाएं तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या करते हैं? मैं परचून का काम करता हूँ। हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप लोगों का कारोबार काम काज बेहतर हो जाए? हुकूमत को ऐसा करना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी परचून की दुकान है, मेरी, इस बात को समझना है कि मेरी दुकान, ये कहते हैं मेरा पाकिस्तान। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं क्या कहते हैं? मेरा पाकिस्तान। फिर जब मेरी दुकान है, जब मैं ये पान लेकर जा रहा हूँ, सामान खरीद कर लेकर जा रहा हूँ, मैं कहाँ डालता हूँ? मैं अपनी दुकान में डालता हूँ। ये कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान, ये तो तुम्हारा कैसे हो गया? ये जो भी चीज़ है तुम बाहर चले जाते हो लेके पाकिस्तान से। काफ़ी अहम बात की आपने तो। हैं? दिल को छू ये गई बात आपकी। बात जब कह सकते हैं, ये जितने भी कौमी असम्बली में लोग बैठे हैं ना जिस वक्त भी, हाँ। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता। कोई भी सादा पार्टी बात है, की आपने। बिल्कुल जेन्युइन बात है। जो शख्स भी कौमी असम्बली में इस वक्त सीट पे मौजूद है, हाँ। अगर वो ये बात कहता है कि ये मेरा पाकिस्तान है, अगर ये तेरा पाकिस्तान है ना, अपना बैंक बैलेंस चेक कर। अगर तेरा पाकिस्तान है तो ये अपने घर की, जो घर में एसी चल रहे हैं, बच्चा कोई है नहीं, पूरा घर, और 10 कनाल का घर है, कितनी बिजली खर्च हो जाएगी? बिल 1 रुपये का भी नहीं अदा करते। एक आदमी, एक ये देखो, ये बेचारा चने बेच रहा है, एक पक्का चल रहा है, 10,000 रुपये ले लेंगे इससे। तो उनका पाकिस्तान कैसे हो गया? मुझे बताएं आप, मुझे 2 जवाब सारे मिल गए। ये हमारा घर है, ये इसकी दुकान है, ये जो भी चीज़ खरीद कर लेकर आएगा, कहाँ लेकर जाएगा? अपनी दुकान में। वो चीज़ जो खरीदते हैं वो कहाँ लेकर जाते हैं? बाहर। तो उनका पाकिस्तान तो ना हुआ। फिर ये बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए। अपने अमल से साबित करना होगा। हाँ जी। अगर नहीं कह सकते तो ये बात करना ये छोड़ दें ये कि मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क। आपका कहाँ से हो गया? मुल्क तो इसका है, इस बच्चे का मुल्क है। देखो, इसको दिखाओ। हाँ। इसका मुल्क है, इसकी हालत देखो, बेचारे के पास खाने के लिए सही नहीं है। वो खिलाना चाहते हैं लेकिन आमदन नहीं है। कहाँ से लाएं? पैसे चले जाते हैं बिलों में। बिल्कुल, ये बिल्कुल इन्होंने सादा और साफ बात की है कि हमारे यहाँ एक रट लगाई जाती है कि जी हमारा पाकिस्तान है, हम इसके लिए। वो कहते हैं कि अगर है तो अमल करके साबित करके दिखाएं, इस मुल्क की खिदमत करके दिखाएं, खाली बातें ना करें, दावे ना करें। जब उनका छाना जाता है तो पता चलता है कि जी उनका तो कहीं और ही इंटरेस्ट है। तो फिर वो इस मुल्क में इस आवाम के सामने क्यों ये बात करते हैं कि ये हमारा है सारा कुछ, जबकि वो उसको अपना नहीं समझते। हम जरा आगे भी चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। सुनाएं, कैसे जा रहे हैं आजकल काम काज? काम के हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है। हर बंदा परेशान है, परेशान, पैसों की आमदोरफ्त नहीं हो रही। आमदरफ्त कब से नहीं हो रही? ये तकरीबन काफ़ी देर से ही ऐसा है, लेकिन ये पिछले 2-3 माह से तो बिल्कुल ही इजाफ होगा। हाँ बिल्कुल ही। क्या ऐसा होना चाहिए कि आप कहने के पैसों की आमदरफ्त भी शुरू हो जाए? ये हमारे काम भी बेहतर हो हुक्मरान जाए? की तरफ से रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली के बिल कम होने चाहिए, खाने पीने की अशिया कम होनी चाहिए। लेकिन रिलीफ क्या, वो हुक्मरान ये कहते हैं कि रिलीफ तब हम दें जब हमारे पास पैसे हों। खजाना खाली है, कहाँ से रिलीफ दें? भाईजान सब कुछ ही है, हर चीज़ है, सिर्फ इनको आवाम को डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है। हर चीज़ इनके पास है। आप ये कहें कि अपने लिए है, आवाम के लिए नहीं है? नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं, हालात भी बेहतर हो सकते हैं, महंगाई भी कम हो सकती है। सिर्फ नीयत की बातें होती हैं, नीयत इनकी साफ नहीं है, हुक्मरान अच्छे नहीं हैं। हर बंदा जो कुर्सी पे आके बैठ जाता है वही हाकम हो जाता है। ऐसे ये सिलसिला नहीं चलने वाला। ये ऐसे वो कह रहे हैं ये सिलसिला नहीं चलने वाला। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे हुक्मरानों को अमल से साबित करना होगा। रिलीफ दिया जा सकता है अगर कोशिश की जाए। एक और भी इशू तो ये है कि फिर अवाम ये मुश्किलात कब तक बर्दाश्त करे जब हुक्मरान खुद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। बेटा क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम, कौन सी क्लास पढ़ते हो? कुरान पाक। कुरान पाक, माशाल्लाह। क्या बनोगे बड़े होगे?
हाफिज। हाफिज, शाबाश। ये इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज बनेंगे। ये इन्होंने भी गुफ्तगू की, हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके मौजूदा हालात कैसे चल रहे हैं और अगर हालात अच्छे नहीं जा रहे तो उसका हल क्या है। हमारी हुक्मरान क्लास को करना क्या चाहिए कि आम आदमी के हालात बेहतर हो जाए। हम ज़रा मसीह लोगों से भी ये बात पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह ताला। कैसे जा रहे हैं काम काज? आपके सामने ही है, काम के हालात तो इस तरह के जैसे भीख मांगने वाला कब से? हिसाब है। जब से आप लगा लो 2 साल हो गए इसी रोले में। पहले हालात बेहतर थे, पहले हालात बेहतर थे। जब ये सियासी जमातों के झगड़े शुरू हुए, ये इनकी मुखालफत की वजह से ना हमारे घर का चूल्हा बंद हो चुका है। ठीक है, सुई गैस के बिल, बिजली का बिल और राशन जो है, जो अब और मकान किराए के हैं हमारे, हम किधर जाएं? आप ये कह रहे हैं कि अपने झगड़े बंद कर दें? हाँ जी, ताकि- ये कारोबार पे तवज्जो दें, सनत करने पे के काम तवज्जो है। दें, हमारे रोज़गार पे तवज्जो दें। हमें पाकिस्तान में रहने की शमूलियत इख्तियार होनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी तो नहीं दे सकते। इतना अरसा मुल्क बेहतर चलता रहा, लेकिन आप ये कहेंगे कि झगड़ों की आप मेरी बात को फॉलो करें कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही हमें। ठीक है, 17,000 एक माह का बिल सुई गैस का आया मुझे। किसको कहूँ मैं? आप- उधर जाते हैं वो किश्तें बना देते हैं, कहते हैं ये इस्लामाबाद से बन के आते हैं बिल। कहाँ से भरे हैं हम? 24,000 मेरी तनख्वाह है, 7,000 मकान का किराया है, 17,000 बिजली का बिल, सुई गैस का बिल है। लगाएं हिसाब, मैं राशन कहाँ से लाऊं? ये कपड़ा बिछाऊं? क्या आप मुझे देंगे? गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? हर चीज़ पे गौर करना। किस चीज़ पे गौर कर रही है? मुझे इस चीज़ का बात बताएं कि गवर्नमेंट किस चीज़ पे गौर कर रही है। गवर्नमेंट का क्या मतलब है, आप बताएं। भी हर चीज़ पर गौर करना। किस चीज़ पे गौर हो रही है? सिर्फ करप्शन पे? जो पैसा था हमारा वो सारे का सारा बाहर, और हम यहाँ भूखे मार रहे हैं। एक दफ़ा आटे का रेट तोड़ दिया जाता है, दूसरी दफ़ा डबल हो जाता है। हफ्ता नहीं गुजरता। हफ्ता नहीं गुजरता, रोज़ पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। जैसे- 15 तारीख को बढ़ गया, यकम को बढ़ गया, एक दफ़ा तोड़ दिया, 2 दफ़ा बढ़ा दिया। जैसे इसी चक्रों में हम लगे हुए हैं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात को आती है जोड़ शल में। तो मैं क्या करें? गैस 300 रुपये किलो है, फिर क्या खाएं? क्या करें? अपने का पेट वाले बच्चों को पाले, स्कूल पढ़ाना। ऐसा क्या करें हुक्मरान के हालात बेहतर हो जाए? हुकूमत ये जान छोड़ दे। मरियम नवाज आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, करप्शन ख़त्म कर दूंगी। अब करप्शन आगे से भी ज़्यादा आ गया है। 1 रुपया चीज़ का बढ़ता है तो दुकानदार 10 रुपये बढ़ा देता है। कोई चेक एंड बैलेंस इस नहीं चीज़ पे चेकिंग कोई भी नहीं है। है। कोई भी चेक नहीं है। उन्होंने सादा सी गुफ्तगू की, ऐसी बातें जो जेन्युइन प्रॉब्लम है आम आदमी के, और वो तवज्जो दिला रहे हैं कि यार हुकूमत अगर बन गई है तो अपनी जिम्मेदारी संभाले, अगर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो फिर घर चले जाएं। हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर साहबा मौजूद हैं, बाकी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। अगर डीसी काम नहीं करे तो घर भेजें उसको प्रोटोकॉल भी दिया हुआ है, लेकिन वो मार्केट को बेहतर नहीं कर सका, शहर के हालात बेहतर नहीं कर सका, तो फिर जो काम नहीं कर सका घर भेज जाना चाहिए। हमें वज़ीर आला पंजाब से हज़ारों उम्मीदें थी कि मरियम नवाज आएगी और मुल्क को सुधारेंगी। अब आप खुद ही देख लें कि मुल्क के हालात इस वक्त क्या हो चुके हैं। मुल्क किस चौराहे पे खड़ा है? बेरोज़गारी, करप्शन, कहाँ जाए लोग? कहाँ जाएं लोग? सादा सी बात है। क्या हाल है जी आपके? आप ठीक हो? तबीयत से ठीक अल्लाह है? का शुक्र। क्या करते हैं आप? सर मेरा टिक्की कबाब का काम है बागर चौक पे। टिक्का कबाब, जी। टेस्ट कैसा होता है आपके कबाब का? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट होता है। कहाँ से लोग आते हैं? मेरे पास बुलगाश से और कबीर वाला से, डेजा गारी खां से और इसी पूरे डिवीज़न से आता है। क्या ऐसी वजह है कि आपका जो कबाब है वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं? वजह क्या है? वो ये है कि ना, ये हम चटपटा सा बनाते हैं, और मसाले वाली रोटी हो गई, और चिकन पीस है, चिकन कबाब है। आपने मियार को बरकरार रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बताएं कि हमारी हुकूमत कैसी जा रही है? ये जो हमारी हुकूमत है ना, ये नून लीग वाले जो है ना, हमें बहुत सी उम्मीदें थी कि इस पंजाब में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी,
और इस पंजाब में दिन ब दिन जो है ना खुशहाली आएगी। लोड शेडिंग की वजह से हमारा काम बहुत थोड़ा नॉर्मल हो गया है, ठीक है, महंगाई बहुत हो गई है। तो ऐसा क्या करे हुकूमत कि आपका काम बेहतर हो जाए मजीद? ये बिजली का जो है ना रेट बहुत हैवी होता जा रहा है, दिन ब दिन बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो महंगाई बहुत शिद्दत से हो रही है, इस वजह से हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि महंगाई बिजली का रेट कम कर दें तो आप अच्छी क्वालिटी का खाना लोगों को खिलाएंगे और आपका काम अच्छा चलेगा। इंशाल्लाह। ठीक है, और कह रहे हैं कि बिल सबसे मेन मसला है, बिल कम कर दें उनको, कहते हैं हमारा काम चल जाएगा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? किराने की शॉप है। किराने की शॉप। जब आप सामान लेके आते हैं अपनी शॉप पे तो कितने दिन के बाद उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है? सर आप ये देख लेना, पहले बचत होती थी हमारे किराने के अंदर तकरीबन 25%, अब आ गई है उसके अंदर 7 से 10%। 7 से 7 से 10%? जी। अब बताएं 10% प्रॉफिट जो होता है। प्रॉफिट रेशो है पूरा। अब बताएं कि 10% में आपका घर कैसे चलेगा? और कितने घंटे आपको दुकान पे खड़ा होना पड़ता है? हमें कम से कम भी ना 11 से 12 घंटे। और इन्वेस्टमेंट कितनी डालनी पड़ती है? इन्वेस्टमेंट कम से कम भी 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट डालें, 7 से 10 से 12 घंटे रोजाना वहाँ पे खड़े हों, उसके बाद भी आपको 100 में से 7 या 10 रुपए बचते हैं। ठीक। अब बताएं इसमें से आपका जो बिल आता है वो आजकल के हिसाब से आप देख लें 10-12 हज़ार मामूली बात। आप ये कह रहे हैं कि जब बिल आता है तो 100 में से 20-30 रुपए सरकार को देने पड़ते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, मैं मिनिमम आपको रेंज बताता हूँ, आपकी महीने की सेल जो है ना वो 1 लाख, उसमें से आपको बचत कितनी मिलती है? 10,000। ठीक है, ठीक है, उसमें से 8 से 10 हज़ार रुपये आपको बिल आएगा, आपका घर कैसे चलेगा? वो तो सारी मेहनत बेकार गई। यही हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हाल होता है, आवाम बाहर निकलती है चोरी चकारी के लिए, जब उसका रेशो नहीं बनेगा, हाँ, जब मेहनत करके कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगी वो? हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा ब्रीफ निकालें, कोई ऐसी उसके अंदर सिस्टम निकालें जब भी अच्छी तनख्वाहें बनाएं मुलाजिमिन के लिए, जब भी उनको रोज़गार दें, ठीक है, फिर कामों से निकलेंगी वो। ये जो चोरी चकारी ख़त्म होगी। अब ये अंदाज़ा लगा लें यहाँ पे बिजली चोरी कोई और करता है, भुगतता कोई और है, भुगतता कोई और है, ठीक है, सारा नजरा तो आवाम पे गिरता है ना, शरीफ लोग का तो कोई यहाँ पे हाल नहीं है। तो फिर आप कहेंगे इससे माशरा मजीद खराबी की तरफ जाएगा, खराबी की जो तरफ लोग जा काम रहा कर है। रहे हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगा वो। फिर उनको अब ये देख लेना, अंदाज़ा लगा लें, जिसको अंदाज़ा आराम से अगर चोरी चकारी में उसको मिल जाता है पैसा, वो मेहनत क्यों करेगा? मेहनत करने में उसको जितना मिल रहा है वो तो सारी हुकूमत ले रही है। 10,000 रुपये अगर वो बचत कर रहा है वो तो हुकूमत ले रही है, घर क्या खाएगा वो? जी बिल्कुल, उन्होंने अहम बात की, वो ये कहते हैं कि जो हम कमाते हैं अगर वो सरकार ले जाएगी तो फिर मेहनत कौन करेगा? अब मेहनत तो लोग करना चाहते हैं, वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन वो ये सादा सी बातें कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत मुश्किल या रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है कि हम कहेंगे किसी की समझ में नहीं आने वाली बातें। ये बिल्कुल सादा, बिल्कुल बगैर लगी लिपटी की बातें हैं कि अगर जो आम आदमी कमाता है वो सरकार उससे ले लेगी तो फिर आम आदमी मेहनत तो ना करे, फिर वो किसी और काम पे लग जाए ताकि सरकार का भी मुंह बंद रहे और उसका भी काम चलता रहे, तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर माशरा कैसे डेवलप होगा, माशरे में इक़्तिदार कैसे रहेंगी, माशरे की रवायात कैसे बरकरार रहेंगी, माशरे में जो कानून है उसकी हुक्मरानी कैसे रहेगी, फिर तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो इसकी तरफ आम आदमी तवज्जो दिला रहा है कि भाई ये वतीरा छोड़ दें हमारे हुक्मरान, बेहतर पॉलिसियाँ बना लें, आम आदमी पे उतना बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना ना डालें कि वो काम करने ही छोड़ दें। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम। एक नाज़रीन से हमने अवाम से बात की, अभी जो हमें गुफ्तगू सुनने को मिली उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लोग मुस्तकबिल के हवाले से कितना परेशान है। परेशान इस बात पे नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी आमदन महदूद होगी, परेशान इस बात से है कि जो उन्होंने मेहनत की, अगर लोग मेहनत करना छोड़ देंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? ऑप्शन लिमिटेड ये कह रहे हैं कि हमारे पास होते जा रहे हैं, जो हम कमाते हैं वो वसूल हो जाता है वापस, तो फिर हम क्या करें? कि कहाँ से वो कौन सा ज़रिए आमदन है जिसको हम अडॉप्ट करें तो हम सरकार के खर्चे भी अफोर्ड करें, अपने भी अफोर्ड करें, अपनी फैमिली के भी अफोर्ड करें? वो ज़रिए आमदन लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं कि हमें बता दें, क्योंकि हम 12-15 घंटे काम करने के बाद भी वो अखराजात पूरे नहीं कर पाए। हम तो आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।
बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में। अभी मैंने एक शायरी से बात की, वो ये कहते हैं कि हम कमाना चाहते हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम 12 से 15 घंटे काम भी करते हैं, लेकिन जो कमाते हैं आधा सरकार ले लेती है, आधा टैक्सेस की नज़र हो जाता है। तो हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे खर्चे पूरे हों? तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी जो मेहनत कर रहा है उसके कम से कम बुनियादी ज़रूरियात तो पूरी हों? सर, सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जिस इंसान को अल्लाह की ज़ात पर तवक्को नहीं है ना, तकवा नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल की मद में अरबों रुपए हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, किसके इस्तेमाल हो रहे हैं? होते तो आवाम के हैं। आवाम के होने हैं, हमारी टैक्स के पैसे होते हैं। टैक्स से ये जो जिसके पास प्रोटोकॉल है या नहीं है, वो उसने मरना नहीं है, वो तो सबने मरना है। डीसी के देखो कितनी प्रोटोकॉल है, भाई साहब को डाला पूरा मिला हुआ है। आरपीओ को देखो, सीपीओ को देखो कितना है, इंसान है ना, इसी माशरे के लोग हैं। लेकिन हाँ, इसी माशरे के लोग हैं। ठीक है, ये उल्टा ये हेड बनाते हैं कि हम जा रहे हैं। हालांकि उनकी अगर फैमिली देखे तो वो शायद इतनी उसमें नहीं होती, लेकिन वो एक ओहदा मिलता है, उसके बाद उनका स्टेटस चेंज हो जाता है। यकीन करो, जितना प्रोटोकॉल इस्लामाबाद में है उस प्रोटोकॉल को सारा ख़त्म कर दो, यकीन करो तकरीबन आपका बहुत सारी बचत होगी। आप ये कहने कि अगर प्रोटोकॉल कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये लोग काम करना शुरू कर देंगे। अकरबा परवड़ी ख़त्म करें। ये देखें निगरान हुकूमत कितना अरसा चली है, ये बताएं। 1 साल से ज़्यादा चली है। क्या मुल्क नहीं चला? चला है। कितनी महदूद थे ना मिनिस्टर। मेरा तो दिल करता है अगर मेरे बस में हो ना, मैं गौहर एजाज को वज़ीर आज़म बना दूँ। गौहर एजाज। और एक शेर है हबीब जालिब का, ना सागिर का है या हबीब जालिब का है, जिस फ़कीर के लुट जाए कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। ये तो वही हो रहा है। ये देखें, ये अब एशिया में सबसे कम और सस्ता अफ़गानिस्तान में। बिल्कुल। क्या है वहाँ? तबाही नहीं हुई? कल जंग से निकला है। जंग से निकला है ना, क्या वो क्या अब सही नहीं है? उसने किसी से इमदाद ली है? IMF के पास किया है, वर्ल्ड बैंक के पास किया है, चल नहीं पाता। एशिया बैंक के पास किया है, किसी जगह नहीं किया। क्या है? तकवा। क्या है? बाकी अंदर से जैसे हैं, हर इंसान को पता है, मेरे अल्लाह को पता है। ये सिर्फ ये कर लें, कुछ भी ना करें, अपने प्रोटोकॉल काम लें, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको संभाल लें, या तो फिर इस मुल्क में वो ही करें सदारती निज़ाम तक जान छूटे। जान छूट। ये देखें मिनिस्टर के कितने सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरी। बिल्कुल। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल बाकी सेक्रेटरी चलते हैं। अच्छा, और ये खर्चे कहाँ पे आते हैं? सरकार आवाम पे। इस मुल्क में किस चीज़ की कमी है, मुझे ये बताओ, मुझे बताओ किस चीज़ की कमी है? नियाज़ साहब ये बताएं। हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ अगर कमी है तो नीयत की कमी है, तो नीयत की कमी है। और वो एक सादा सी बात जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो काफ़ी एक हम कहें कि एक अच्छी गुफ्तगू इसलिए भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि यार ये अपने प्रोटोकॉल ख़त्म कर लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अब लोग वो शायद जो लोग प्रोटोकॉल ले रहे हैं वो ये समझें कि शायद हमारे खिलाफ बात हो रही है। सादा सी बात है कि जब आपके पास प्रोटोकॉल नहीं होगा तो आम आदमी की रसाई होगी। आम आदमी की रसाई होगी तो आम आदमी आपसे पूछ भी सकेगा कि आपकी ये ड्यूटी थी, आपने अदा नहीं की, ये मसला आपने हल करना है क्योंकि आप सीट पे बराजमान है। जब प्रोटोकॉल होगा, गार्ड्स आपके साथ होंगे, आपकी लग्जरी गाड़ी होगी, तो आपको परवाह नहीं होगी कि शहर, मुल्क, सूबा चल कैसे रहा है, वहाँ पे मसाइल क्या है और लोग हमारे बारे में सोचते क्या है। आप प्रोटोकॉल में घूमते रहें, आपको पता ही नहीं है कि मुल्क में और शहरों में, देहातों में चल क्या रहा है, तो फिर हालात कैसे बदलेंगे। हम ज़रा मज़ीद आगे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है। कैसा जा रहा है काम? भजन शुक्र है, जो भी जा रहा है। ज़रा आप बताइएगा हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत और भजन कितने सालों से हम भी ये पहले 2-3 मरतबा बता चुके हैं, हुकूमत जो है ना किसी काम की भी कोई काम नहीं कर रही। बिजली के बिल महंगे हैं, आवाम जो है बाज़ारों में गाहक नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या हो, ये कितने अर्से से हम बता रहे हैं, आवाम का नहीं सोच रहे। ऐसा क्या हो कि मुल्क के हालात, आवाम के हालात, आप सब के हालात बेहतर हो जाए? कब हालात सही होंगे मुल्क के? नहीं, मैं तो मशवरा मांग रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसा हुकूमत करे कि हालात बेहतर हो जाए? भजन ये सारे कुछ ये अपनी नीयतों को सही करें, नीयतों को सही करें, ये सही तरह काम करें। देखो कितने मुल्क हैं सब खुशहाली की तरफ चले गए, सिर्फ पाकिस्तान है दबो के रख दिया। और हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे चले गए। वजह यह है कि काम करने की नीयत नहीं है आपके मुताबिक। सारे हुक्मरान मुल्क को लूट कर चले गए हैं। सारे हुक्मरान लूट के चले गए, नीयत
ठीक कर लें, काम करने की जिम्मेदारी ले लें, ओनरशिप ले लें, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वो कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, जिस वजह से हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं, ज़रा हम जहाँ भी चलते हैं इनके पास उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसा जा रहा है काम? बस ना पूछें आप, ना पूछें, चले नहीं पूछते, हालात ही ऐसे हैं, मुश्किल है। हाँ। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बहुत ही, मैं तो ना पूछो आप, उसका बिलों पे जोर पे दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मसला बिजली का बिल कर रहे हैं। क्या ऐसा हो जाए, अगर वो हो जाए तो हालात बेहतर हो जाए? आप रीडिंग के तो पैसे कम कर दें, बिजली सस्ती कर दें, कारोबार चले। लेकिन पहले लोगों ने कहा आटा सस्ता कर दें, आटा सस्ता हुआ, बिजली महंगी हो गई। अब कहते हैं चीज़ें सस्ती हो जाएं तो फिर तब जी चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो खाना पीना हो, सस्ता होगा तो कारोबार चलेगा। लेकिन हुकूमत कहती है कि सस्ता करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब पैसे हमारे पास हैं नहीं, मांग तांग के गुजारा करते हैं, तो कहाँ से सस्ता करें? तो वैसे ही ये सारे मांग ही नहीं रहे, फिर आवाम से निकाल रहे हैं सारा कुछ। आप कहते हैं आप जो मेहनत करते हैं यहाँ बैठ के, जो कमाते हैं, आपके आधे पैसे वो ले जाते हैं। तो यही तो चीज़ कह रहे हैं, कोई घर कुछ बचेगा तो कुछ लेके जाएंगे, हम भी कुछ बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि अब हमारा जामा छोड़ दें, कुछ और काम कर लें, कहीं और काम कर लें, हमें जीने दें। तो आप सुनाए कैसे हैं? सुनाए काम काज का? बस बिल्कुल डाउन है मार्केट के हालात कैसे हैं? बिल्कुल डाउन है। आपके साथी दुकानदारों का क्या हाल है? बिल्कुल डाउन है, क्या कारोबार नहीं है। हालांकि मेन मार्केट में बैठे हैं आप लोग। बस क्या पता, ये कारोबार तो गवर्नमेंट को पता है ना, कारोबार तो वो चलाते हैं, चलाई है नहीं, कारोबार भी नहीं है, बिल भी इतने आ रहे हैं। ऐसा हुआ क्या है कि आप कहते हैं हालात खराब हो गए? ये तो गवर्नमेंट को पता है ना। ठीक है, आपको क्या महसूस होता है? हम तो बैठे हैं, हम तो ड्यूटी दे रहे हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। आप कहने का अपनी हाँ, जिम्मेदारी किराया भी पल्ले से दे रहे हैं, काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ जी, मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, हम बैठे हैं, आएगा तो गाहक आएगा, गाहक भी नहीं है, गाहक भी चला गया। हाँ जी, गाहक आएगा तो यहाँ हम काम करेंगे। हम तो पहले बैठे हैं, सुबह आते हैं 10 बजे, शाम को 8 बजे चले जाते हैं। तो कोई लगता है हालात बेहतर होंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी मायूसी की क्या वजह? बस ये गवर्नमेंट की पुलिसियाँ हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आ रही कोई चीज़। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं आ रही, मायूसी मंडला रही है। ये ज़रा दिखाएं, शॉप्स बिल्कुल खाली हैं और हालांकि मेन मार्केट है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे और जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी जानी, तो हम ज़रा जाएंगे, अली सुखनवर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि दानिश्वर भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, तो उनसे जानेंगे कि इस सारी मायूसी में उम्मीद की किरण कहाँ पे है, किसको क्या किरदार रोल अदा करना चाहिए तो हालात बेहतर हो जाएंगे, कहाँ पे हमें ज़िम्मेदारी पूरी अदा नहीं की गई, और जो मुल्कों पे इस तरह के हालात आ जाएँ तो उन दिनों में कौमों को किस अंदाज से बिहेव करना चाहिए, उस पर भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने गुफ्तगू की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और हमने जानने की कोशिश की कि मौजूदा हालात में जो उम्मीद की किरण कहाँ पे मौजूद है, आपने लोगों की भी गुफ्तगू जानी, लोगों के गुफ्तगू में हमें परेशानी और जो शिकवा था वो हमें ज़्यादा दिखाई दिया। और मुसलसल जब भी इन मौज़ूआत पे प्रोग्राम करते हैं तो जो आम आदमी है वो हुकूमत से, रियासत से उम्मीदें लगा के बैठा होता है और तवक्कुआत रख रहा होता है कि उसके लिए क्या बेहतर किया जाएगा आने वाले दिनों में। ये सारा कुछ आपने जाना और इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे कि जो मौजूदा हालात हैं, तो इन हालात में जो कौमें होती हैं वो अपने आप को इन हालात के लिए क्या उसकी तैयारी प्रॉपर करती हैं, या ये अचानक इस तरह के हालात आ जाएँ तो उस वक्त उनका रवैया क्या होना चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार हैं, कालिम निगाह हैं, दानिश्वर हैं, अली सुखनवर साहब, उनसे बात करेंगे तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मायूसी माशरे में आजकल काफ़ी ज़्यादा है, जिससे बात करें मायूसी की सिंपल सी वजह है, वो कहते हैं आमदन नहीं है, और कोई मसला नहीं है कि हम कहें कि वो कहें कि हमें कोई और इशू है, मसला आमदन का आ रहा है। किसी भी माशरे में जब वहाँ के रहने वाले लोगों के पास खाने खुराक ख़रीदने के पैसे कम हो जाएं या जो लग्जरी आइटम हैं वो ना पूरे कर सकें, तो मायूसी वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो क्या समझते हैं, कौमें
اس طرح کے حالات میں کس طرح بیہیو کرتی ہیں اور موجودہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جنگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. جنگیں توپوں سے، راکٹوں سے، ڈرون سے نہیں جیتی جاتی، وہ حوصلوں سے اور اسٹریٹجی سے جیتی جاتی ہیں. میری کسی سے جنگ ہوگی، میں کسی کو کمزور کرنا چاہوں گا تو پہلے میں اس کو یہ احساس دلاؤں گا کہ تم کمزور ہو. جب میں اس کو احساس دلا دوں گا، وہ ایک سٹیٹ آف ڈپریشن میں چلا جائے گا، تو اس کے بعد میں اس پہ حملہ جب کروں گا تو بہتر انداز میں مجھے نتائج مل سکیں گے. یہ ہے جنگ کی اسٹریٹجی. وہ زمانے اور تھے کہ جب گھوڑے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے، تلواریں ایک ایک کا سر قلم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب جنگ اس طرح نہیں ہوتی ہے. مجھے اگر اپنے دشمن کو کمزور کرنا ہے تو مجھے اس کی پہلے سے پلاننگ کرنا پڑے گی اور مجھے اس کو احساس دلانا پڑے گا کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، میں تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں. تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تمہارے پاس تو ٹینکوں میں فیول ڈلوانے کا سسٹم نہیں ہے، تمہارے پاس وہ میزائلوں میں بارود ڈالنے کا امکانات نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہی کچھ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا کو ہم سے خطرہ ہے، خطرہ تھا اور خطرہ رہے گا. کیا خطرہ رہے گا؟ کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اگر ہم اڑ گئے کسی بات پہ، اگر ہمارے ڈٹرمنیشن کو دنیا کی کوئی قوت آج تک ہلا نہیں سکی ہے. ہم چاہے وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل میچز کا معاملہ ہو، جب ہم اپنی آن پر کسی بات کو لے لیتے ہیں تو ہم کر گزرتے ہیں. اس وقت ہو صرف یہ رہا ہے کہ میری ینگ جنریشن کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم ہار چکے ہو، تم ہار چکے ہو، اب ہم تم ماریں گے، اب ہم گے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا نام باقی نہیں رہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ تم اب ہار چکے ہو، تمہارے لیے اس جگہ پہ کچھ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ. یہاں سے اچھا، یہ جو میں ایک میڈیا میں، بلکہ میڈیا تو غلط لفظ ہے، سوشل میڈیا پر یہ آج ہی 8 لاکھ لڑکے جا رہے ہیں یا 28 کروڑ 29 کروڑ کی آبادی میں سے اگر جو آپ کی دی ہوئی فگر ہے 8 لاکھ کی، کیا آپ کے پچھلے 75 برسوں میں کوئی یہاں سے ملک سے باہر نہیں گیا؟ لوگ جاتے ہیں، ہمیشہ جاتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، لوگوں کے عزیز اقارب ہوتے ہیں، وہاں پہ کاروبار ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 28 کروڑ 29 کروڑ میں سے کوئی 5 لاکھ 4 لاکھ لوگ خواہش مند ہیں باہر جانے کے تو ہم کہہ رہی سارے پاکستانی باہر جا رہے ہیں، سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان میں تم بھی موجود ہو بلال نیازی، پاکستان میں یہ بھی موجود ہے، پاکستان میں وہ بھی موجود ہے، پاکستان میں یہ بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں. یقین کر لو میرے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام وسائل ہیں، لیکن میں نے کبھی آج تک ملک سے باہر جانے کی، ملک سے باہر سیٹل ہونے کی یا اپنے بچوں کو باہر سیٹل کرنے کی کبھی خواہش نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہیں اسی زمین کو آباد کریں گے، اسی زمین میں ہل چلائیں گے. مایوسی ہمارے عقیدے کے مطابق گناہ ہے، کفر ہے. میں اسی بنجر زمین پر آپ کو فصل اگا کر دکھاؤں گا، اسی میں درخت لگاؤں گا اور انہی درختوں پر پھل بھی لگے گا اور چھاؤں بھی ہوگی. یہ میرا لیکن ہم یہ بالکل وہ گفتگو ہے جس کی خواہش ہم سب کو کرنی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. لیکن جب پروپیگنڈا وار ہوتی ہے، جب ایک جھوٹی افواہ جھوٹ کا نام ہے، جب وہ پھیلائی جاتی ہے معاشرے میں، تو لوگ جو پہلے سے کچھ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی کو سچ مان لیتے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے، یہ کتنا زہر آلود ہے ہمارے معاشرے کے لیے. دیکھیں، اس ساری صورتحال میں ذمہ داری آتی ہے ہمارے اساتذہ پہ، ہمارے مساجد کے امام صاحبان پہ، علماء کرام پر، لکھنے والوں پر اور ٹی وی اسکرین پر بولنے والوں پر. لوگ بات سنتے ہیں، ایک دفعہ نہیں سمجھ، ایک چیز ہے سننا، ایک چیز ہے سمجھنا. سننے کے ہمیں بارہا مواقع مل جاتے ہیں. اگر بات طاقتور ہوگی تو وہ اثر بھی کرے گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اچھائی کا تذکرہ کرتے رہیں تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ سننے والے پر اثر ہوگا. اور یہ جو اسٹیٹ آف ڈپریشن ہے، لیکن جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں آزاد کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی
کہ آپ پروپیگنڈا کرنے والے کو یہ بڑا غلط کر رہا ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے. یار اف آئی ایم پارٹ آف دیٹ وار تو میں پھر رسپانس کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ جب آپ کے سوشل میڈیا پر آپ کی سیکیورٹی فورسز کے بارے میں, آپ کی فوج کے بارے میں, آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں, سیاستدانوں کے بارے میں, کسی کو نہیں بخشا جا یا رہا, کسی کو نہیں بخشا. آپ دیکھیں آپ کے کون سا شعبہ ہے جو اس بلیم گیم سے باہر ہے. ڈیجیٹل جو آج کل ہمارے یہاں ورک چل رہا ہے اور وہاں پہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سجیشن بھی آتی ہیں کہ کوشش کریں کہ نیریٹو آگے کاؤنٹر نیریٹو بھی ہونا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آخر میں ریاست کو کس حد تک اپنے جو بچے ہیں, اس کے جو نوجوان ہیں ہمارے, ان کا اعتماد جیتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو؟ اب تو تمیز ہی نہیں ہو رہی کہ جو دشمن کل ہمارا دشمن تھا, آج اس بیانی کی وجہ سے وہ ان نوجوانوں کو اچھا لگنے لگ گیا ہے. اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو انڈین ہمسایہ ممالک کی بین تنظیموں کو جو فنڈ ہوتا تھا ہمارے ملک میں, اب وہ بھی اس بیانی کی نظر میں نوجوانوں کو وہ اچھے لگنے لگ گئے ہیں. تو اس میں کیا کردار ہو کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ تو شعور ہو؟ جیسا میں اس بات کو اسی بات سے جوڑوں گا, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دشمن کو, مخالف کو اسٹیٹ آف ڈپریشن میں پھینک دو, تم جنگ جیت جاؤ گے. اب ہو کیا رہا ہے, یہی کچھ ہو رہا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ تمام فنڈز جو ہیں وہ اب اس طرف یوٹیلائز ہو رہے ہیں. ہمارے بچے بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑے طاقتور ہیں, بڑے اسکلڈ ہیں. آپ جو سیکیورٹی فورسز ہیں نا, یا پالیسی میکرز ہیں, ان کے اور عوام کے درمیان اگر کوئی فاصلہ بڑھ رہا ہے, اس فاصلے کو گھٹانا چاہیے. میں ایک ادارے کا پرنسپل ہوں, میں یہاں بیٹھا ہوا اس کمرے میں, گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ کالج کے کمرے میں بیٹھ کے میں سارا نظام چلاتا رہا ہوں. میرا اسٹاف کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں, میرا یہ نان ٹیچنگ اسٹاف کیا سوچ رہا ہے, میرے بچے جو یہاں پہ 1000 موجود ہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. میرے پاس وہ جاننے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ میں اپنے انفارمرز چھوڑ دوں, وہ اگر مجھے بتا دیں کہ سر آپ کے سارے لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, بڑے خوش ہیں, بڑے خوش ہیں, سر بچے آپ کے حق میں تو ہے جو جلوس نکالنے کے زندہ باد کے نعروں کا. ایک میرے پاس سورس یہ ہے. دوسرا سورس میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کمرے سے باہر نکلوں اور ان میں جا کر بیٹھوں, ان کی بات سنوں, ان سے میں 1 on 1 جسے انٹریکشن کہتے ہیں وہ کروں. اس فاصلے کو کم ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے جو خبر دے رہا ہے آ کر, اب وہ خبر دینے والا کون ہے, وہ سوشل میڈیا ہے. وہاں کون بیٹھا یہ بھی نہیں پتا, وہاں کون بیٹھا ہے وہ یہ بھی نہیں پتا. اور جو میرا انفارمر ہے اس کی کیا انٹینشنز ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے کسی نے کچھ پیسے پکڑا دیے کہ ان کو ایک خیالی جنت میں رہنے دو, ہم باہر جا کر دیکھ لیتے ہیں کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے. تو یار یہ ساری چیزیں ہیں دنیا بھر میں. بہت سے سعودی عرب میں یہ سوشل میڈیا ہے, وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بادشاہ سلامت کے بارے میں کیوں نہیں ہے. وہ اسی لیے, اچھا وہ نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پہ نظام صحیح چل رہا ہے, وہاں پہ سکون ہے, اطمینان ہے, کوئی بغاوتیں نہیں ہیں, ہنگامے نہیں ہیں. اپنے دوستوں کو پہچانے. یہ جتنے آپ کے ارد گرد ہیں نا, بلوچستان میں اور KPK میں اور شمالی وزیرستان میں, یہ تمام لوگ پاکستان کے بیٹے ہیں. یاد رکھیے گا, اپنے بیٹوں کو ناراض نہ کیجیے. انہیں یہ احساس دلائیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو, تم میرے بازو ہو, اور تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. جس دن تمہیں یہ آپ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے, آپ یاد رکھیں آپ کو کسی سمت سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ان سے دلیر تو قومیں کوئی نہیں ہے, ان سے بہادر تو لوگ کوئی نہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً وقت دیا. ناظرین اپنی گفتگو جانی, ہم نے کوشش کی کہ جو اس وقت سب سے مین پرابلم چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, اور گفتگو کا محور یہی تھا کہ اس حوالے سے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پروپیگنڈے کا شکار اگر قومیں ہو جائیں اور اس کا سب سے زیادہ حصہ ہمارے اگر نوجوان بن جائیں تو یقیناً پھر مایوسی بھی سامنے نظر آتی ہے, پریشانی بھی نظر آتی ہے, اور مستقبل بھی تاریک دکھائی دیتا ہے. اگر وہیں پر یہی گفتگو ہو کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, ملکوں پہ وقت آ جاتا ہے, قوموں پہ مشکل وقت آ جاتے ہیں, حالات کا مقابلہ کیا جاتا ہے, اور پھر قومیں مشکل حالات سے نکل کر اچھے حالات کی طرف بھی جاتی ہیں اور دنیا میں اپنا مقام بھی حاصل کرتی ہیں.
تو پھر صورتحال مختلف دکھائی دیتی ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔